Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Good evening, listeners, and welcome to another edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic and business news of the day. And today being Sunday, we'll also be taking calls from you, our listeners, on mutual fund and related issues. You can call us on 2331 4444, 2371 7106, and our third dedicated line is 2371 7117. If you're calling from outside Delhi, please prefix the STD code, that's 011 before the numbers. I'm S. Rangabashyam, and with me is my co-anchor in Hindi, Subodh Mishra. Good evening, Subodh. नमस्कार रंगा और नमस्कार श्रोताओं। कारोबारी खबरों के साथ मार्केट मंत्र हाजिर है। आज रविवार है और हर रविवार की तरह आज भी हम म्यूचुअल फंड से जुड़े आपके सवालों को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आप हमें फोन करके म्यूचुअल फंड से जुड़ी जानकारियां हासिल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 2331 4444, 2371-7106 और तीसरा नंबर है 2371-7117। दिल्ली से बाहर के श्रोता इससे पहले एसटीडी कोड 011 डायल करें। आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट धीरेन्द्र कुमार। धीरेन्द्र, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। पहले हेडलाइंस के साथ हैं रंगा। Thank you, Subodh. The top stories. India is leading the world of startups with record investments year after year, says Prime Minister Narendra Modi. 2 companies to float IPOs next week, and foreign investors pump in over 5,300 crore rupees into the Indian capital market so far in November. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, साल दर साल रिकॉर्ड निवेश के साथ भारत दुनिया भर में स्टार्टअप्स में अगुवाई कर रहा है। अगले सप्ताह 2 कंपनियां लाएंगी अपने आईपीओज और विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक भारत के पूंजी बाजार में 5,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया। Well, now for all the details. Prime Minister Narendra Modi today said India is leading in the world of startups and startups are getting record investments year after year. Addressing the nation through his Mann Ki Baat program on All India Radio, Mr. Modi said that the sector is progressing very fast and its reach has increased even in small towns of the country. He spoke about unicorns and explained that a unicorn is a startup whose valuation is at least $1 billion. That is more than about 7,000 crore rupees. He highlighted that till 2015, there used to be hardly 9 or 10 unicorns in the country. He exuded pride that according to a report, a unicorn is being raised in India every 10 days. He said that today there are more than 70 unicorns in India. The Prime Minister said Indian youth is also contributing to the solution of global problems through startups. The Prime Minister stated that this is the turning point of India's growth story, where people are not only dreaming of becoming job seekers, but also becoming job creators. He said this will further strengthen India's stature on the global stage. आइए कॉल्स का सिलसिला शुरू करते हैं। डॉक्टर अग्रवाल हैं हमारे साथ विशाखापट्टनम से। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। अच्छा, ये लाइव आएगा या रिकॉर्डेड आएगा? जी लाइव आएगा। लाइव चल रहा है डॉक्टर साहब, आप सवाल पूछें। सर नमस्कार, मैं विशाखापट्टनम से बात कर रहा हूँ जी। पिछले कई सालों से हमारा सब तरफ ये कहा जा रहा है कि आप इसमें पैसे लगाएं, तो मैं काफी देर से ये प्रश्न पूछते आ रहा हूँ कि इसका जो डेटा है पिछले 20-25 साल का, कई लोग तो कहते हैं कि जो प्रोविडेंट फंड है उसके बराबर ही रिटर्न आ रहा है, कई लोग कहते हैं कि 15-20% रिटर्न आ रहा है, लेकिन ये सवाल आ रहा है कि किसमें लगाएं। तो मैं हमेशा पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितने म्यूचुअल फंड थे पिछले 20-25 साल के, सब अब किसी ने मान लो सब में बराबर पैसे एक समय के लिए लगाए, तो उसमें एवरेज रिटर्न कितना है कैसे पता चलेगा? राइट, यस धीरेन्द्र।
एक तो कि एवरेज रिटर्न जो है उसका मतलब नहीं है, उसका कुछ खास मतलब नहीं है, क्योंकि म्यूचुअल फंड बहुत तरीके के होते हैं और लंबे समय के लिए इक्विटी फंड या हाइब्रिड फंड्स में निवेशक को आमतौर पर निवेश करना चाहिए। कम समय का पैसा आपको कभी भी इक्विटी फंड में नहीं लगाना चाहिए। हालांकि म्यूचुअल फंड बहुत पुराने हैं, लेकिन जो सबसे पुराना फंड है भारत का, जो करीब 35 साल पुराना है, मास्टर शेयर, जो कि सबसे पहले भारत में इक्विटी फंड की शुरुआत 1986 में हुई थी, उसमें उसके लॉन्च से अभी तक सालाना रिटर्न करीब 16% से ज्यादा का होगा। हर साल वो डिविडेंड भी देता है। उस डिविडेंड को लेकर के, ये मान करके कि उस डिविडेंड को रीइन्वेस्ट किया गया हो, या शायद ये नहीं, ये मैं 7 साल डायरेक्ट प्लान का मैं रिटर्न बता रहा हूँ, शायद उससे भी थोड़ा ज्यादा हो, क्योंकि पिछले 20 साल में और अगर इसके आप प्रोविडेंट फंड से सचमुच तुलना करना चाहते हैं तो असल तुलना होगा, क्योंकि प्रोविडेंट फंड में तो आप जो पैसा लगाते हैं वो एक साथ नहीं लगाते हैं। जो भी आप लगाते हैं वो धीरे धीरे हर महीने लगता है। एक तो आपका पैसा कट के जुड़ता जाता है और दूसरा उस पर जो आपको ब्याज मिलता है, जो कंपाउंडिंग होता है। ये जरूर है कि खराब से खराब फंड भी प्रोविडेंट फंड से ज्यादा रिटर्न दे पाने में सक्षम रहा है पिछले 20 साल, 22 साल, 25 साल में, जब से म्यूचुअल फंड लोगों के पास उपलब्ध है। मैं इक्विटी फंड और हाइब्रिड फंड्स की बात कर रहा हूँ। जहां तक दूसरे इनकम फंड्स की और शॉर्ट टर्म फंड्स की बात है, वहां पे इस तरह का रिटर्न नहीं मिला है और अब नहीं मिलेगा। Right. Let's take our next caller. We are joined by Bharat Bhushan from Delhi. Good evening and welcome to the program. किशन कुमार भार्गव भी। किशन कुमार भार्गव। हाँ, जब स्टार्टिंग में मार्केट मंत्रा में आया करते थे। ओके, राइट, फाइन, यस। चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग सब हम जुड़े हुए हैं पूरे बचपन से सर। जी, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार रंगभूषण सर। जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, पूछ रहा हूँ जी। सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे कि अभी हालिया दिनों में बाजार में गिरावट आई है सर जी, तो मुझे कुछ ऐसे एक म्यूचुअल फंड ऐसे बताइए सर जिसमें कि जो निफ्टी के लार्ज कैप की बैलेंस हो सारे स्टॉक। और एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ सर कि जो इतने सारे कंपनी है, जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक कंपनी है, उसी की म्यूचुअल फंड 10 तरह के आते हैं, तो उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए कि भैया आप पहले से ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग चल रहे हैं प्लान, आप उसी में पैसा डालिए, फिर आप एक डायनेमिक लेके आते हो, एक ग्रोथ लेके आते हो, एक अपॉर्चुनिटी लेके आते हो, तो लोग के पैसे लिमिटेड है ना सर। 5,000 रुपए में कहाँ पे निवेश करूंगा? आप 10 तरह के प्लान लेके आते हैं सर। ठीक, मैं समझ गया आपका सवाल। धीरेन्द्र जी से जानते हैं कि इसमें क्या होता है। जी, ये ढेर सारे फंड उपलब्ध हैं। एक तो कि अभी बाजार बिल्कुल अभी गिरा हुआ है, तो या थोड़ा गिरा है। पिछले महीने में अगर सेंसेक्स का रिटर्न देखे तो ये यहाँ पे 6% की गिरावट है। लेकिन नहीं भूलना चाहिए कि पिछले 1 साल में अभी भी बाजार 30% ऊपर है, या मिड कैप इंडेक्स हमारा अभी भी 50% ऊपर है, या स्मॉल कैप इंडेक्स अभी भी 75% ऊपर है। तो बाजार में मामूली सी गिरावट आई है पिछले सप्ताह में, और हो सकता है कि ये गिरावट का दौर थोड़े समय और चालू रहे। लेकिन ये जिस तरह के मुनाफे या जिस तरह की बढ़त देखी गई थी उसकी तुलना में ये बहुत मामूली है। हाँ, हालांकि ये जो शुक्रवार को जो गिरावट है उसका जो फेरोसिटी था, जिस रफ्तार से वो गिरा, वो काफी सारे लोगों के लिए वो चिंता पैदा करेगा। बहुत सारे इंडेक्स फंड उपलब्ध हैं जिसमें कि आप जब पैसा लगाते हैं तो जैसे इंडेक्स का जो कंपोनेंट है, जैसे निफ्टी में 50 शेयर जो लगे हुए हैं का जो जिस अनुपात में लगे हुए हैं, उसमें पैसा लगाना आपका एक निवेश, और उसी रेशियो में आपका सारा पैसा उस इंडेक्स फंड में लग जाता है। और ये बहुत कम एक्सपेंस रेशियो पे इनका खर्चा बहुत कम है। तो उस तरह के इंडेक्स फंड में पैसा लगाना संभव है। अगर आप इससे फायदा उठाना चाहते हैं कि इंडेक्स में गिरावट हुई है, उसका फायदा उठाएं, इंडेक्स में लगाएं, तो इंडेक्स के अनुपात में ही फंड में पैसा लगाना आज बहुत आसान हो गया है। तीसरा चीज कि म्यूचुअल फंड कंपनियां बहुत सारे फंड लाती हैं और इससे आपको दिक्कत होती है। लाने दीजिए उनको, हर एक में आपके लिए पैसा लगाना जरूरी थोड़ी है। और ऐसे भी आप म्यूचुअल फंड कंपनी के सारे फंड में आप पैसा नहीं लगा सकते। एक फंड कंपनी का कभी 70, 80, 90 तरीके का फंड है और संभव है। अगर जिनका नहीं है उनका लाना संभव है। हालांकि सेबी ने नियम बनाया है 36 तरीके के, तो करीब हाइब्रिड इक्विटी और डेट के ओपन एंड फंड संभव है।
सभी ने इस पे पाबंदी लगाई थी कि एक कैटेगरी में, और ये जो कैटेगरी का लिस्टिंग हुआ वो करीब 36-38 तरीके के हो गए हैं। और ये मैं केवल ओपन एंड फंड की बात कर रहा हूँ, और ओपन एंड जेनेरिक फंड की मैं बात कर रहा हूँ कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, वैल्यू, ग्रोथ, टैक्स सेविंग, इस तरह करके। और सेक्टर फंड को तो जोड़ी भी मत, क्योंकि सेक्टर फंड तो बहुत तरीके के हो सकते हैं उनको लिए बगैर। लेकिन आम निवेशकों की जरूरत तो केवल 4-5 तरीके के फंड से हो जाती है, और आप इससे बिल्कुल ना घबराएं। हाँ, अच्छा रहता है कि चीजें सामान्य रहती है, सिंपल रहता है, 4-5 तरीके का फंड ही रहता है और आपके लिए चुनाव आसान होता है। लेकिन हमें पता है कि जो ये जो म्यूचुअल फंड का जो डेमोक्रेटाइजेशन या शुरुआत हुई है, कंपनियों को बड़ा फायदा होता है जब इसको एक कहानी की तरह एक नए फंड के रूप में लाया जाता है, उसको ढोल नगाड़े के साथ बताया जाता है, और फिर निवेशक बड़े आकर्षित होते हैं। और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि अभी भी, और उसका कारण क्या है पता नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है, लोगों को भ्रम है कि वो 10 रुपए में सस्ता खरीद रहे हैं, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं। क्योंकि म्यूचुअल फंड का दाम आप किसी भी दाम पे खरीदे, 10 रुपए पे खरीदे, 100 रुपए पे खरीदे, 5 रुपए पे खरीदे, आपका 10,000 रुपए का जो फंड है में जो आप फंड खरीदेंगे, बाजार जितना बढ़ेगा उतना ही, उसी अनुपात में आपका पैसा बढ़ता है। लेकिन इसके बावजूद अभी आपने हाल में सुना होगा कि एसबीआई का एक बैलेंस्ड एडवांटेज फंड या आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का एक मल्टी फ्लेक्सी कैप फंड, इसमें 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा आया। और दूसरे जो पुराने फंड है जिसमें कि उनका एस्टैब्लिश्ड ट्रैक रिकॉर्ड है, पता है कि ये फंड क्या करेगा, ये भी पता है कि ये फंड क्या नहीं करेगा, इतना ये भी पता है कि ये फंड गिरते बाजार में कैसा किया, इसने किया था, बढ़ते बाजार में कैसा किया था, उसके बावजूद लोग उसमें पैसा लगाने के बजाय एक नए फंड में जिसका कि कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है उसमें पैसा लगाते हैं। राइट। अगले कॉलर हैं मुंबई से सचिन। स्वागत है आपका, सवाल पूछें। थैंक यू सर। जी सवाल। 2 सवाल है। ये बिजनेस साइकिल फंड के बारे में आपका ओपिनियन क्या है, और दूसरा सवाल है, अगर हमें नया परचेज करना है या इन्वेस्टमेंट करना है तो क्रेडिट कार्ड से हम लोग यूनिट परचेज कर सकते हैं? ओके, यस। बिजनेस साइकिल फंड के पीछे सोच ये है कि हर एक बिजनेस एक साइकिल, आमतौर पे हमारा इकोनॉमी और हर तरीके का कमोडिटी साइकिल और बिजनेस में भी एक साइक्लिकलिटी दिखती है। कभी अच्छा करते हैं, कभी अच्छा नहीं करते हैं, और ये एक बहुत ही एक उतार चढ़ाव का दौर जारी रहता है। किसी समय इकोनॉमी अच्छा कर रहा हो लेकिन कोई खास सेक्टर अच्छा नहीं करता, और ये एक बिल्कुल इंटरमिटेंट चीज है, ये होता ही होता है, भले ही ओवर अ पीरियड ऑफ समय अच्छा करे। और कुछ बिजनेस, और ये जो साइक्लिकलिटी है, बिजनेस साइकिल फंड का उद्देश्य ये है कि इस साइक्लिकलिटी से फंड मैनेजर फायदा उठाएगा और आपको बेहतर रिटर्न देगा, ज्यादा इंडेक्स को बीट करने की कोशिश करेगा। जिनका आउटलुक ब्राइट होने वाला है उनमें पैसा लगाएगा, जिनका ब्राइट नहीं होगा उनसे पैसा निकालेगा। लेकिन अधिकतर फंड तो यही करते हैं, और किसी भी आम डाइवर्सिफाइड फंड को ये भी करना चाहिए अपने फंड में, बल्कि अगर ये नहीं भी करते हैं तो सोच तो यही रहती है कि उनसे दूर रहा, वो उनसे उन कंपनियों में पैसा न लगाए जिनका आउटलुक ब्लीक है। या तो ये एक नए तरीके का फंड, ये एक थीमेटिक फंड है। लोग म्यूचुअल फंड कंपनियां, जैसा मैं बता रहा था कि उनके वो नया फंड लगाने का तांता लगा हुआ है, होड़ मची रहती है, उसमें लोग पैसा लगाते हैं। आप जैसे लोग पैसा लगाते हैं जिनको कि ये कहानी अच्छा लगता है और इन फंड्स का कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। आमतौर पे मेरी सलाह होती है कि अगर आपको कोई म्यूचुअल फंड चुनना हो तो दूसरे जितने एग्जिस्टिंग फंड है और इनमें कोई अंतर नहीं है, बल्कि उनके बारे में आप बहुत कुछ जान सकते हैं, इनके बारे में आप कुछ नहीं जानेंगे। केवल आपको बताया जाएगा कि ये क्या करने की कोशिश करेगा और वो कर पाएगा कि नहीं, ये अब इसके बारे में अभी नहीं पता है। यही सोच करके आपको इससे बचना चाहिए। Yeah, and very briefly, he asked whether one can buy mutual funds using credit card. Well, it is no, it doesn't make sense because credit card normally comes with a MDR, of a reasonably high merchant discount rate. So no fund company actually allows it, because when you spend 100 rupees, the vendor, the seller, or the intermediary actually gets it, gets 98 rupee or 98 rupees 50 paisa, and the remaining money goes in the intermediation or the discounting. So
debit card is possible. All kind of digital remittances is possible, and that is what is being used by most online banking. You can do that. You can also set up a SIP mandate, periodic debit mandate from your bank account, but no credit card. Right. And joining us next is Virendra from Gurugram. Good evening. So, good evening, everyone. I have two questions. Yes. One is the markets have recently fallen in the last week. So, is there any outlook? Can it go as bad as it was last year? That's one. Second is a process-based question. That I have few SIPs running, but at times I have noticed the date of debit and NAV allocation date, they are not same. So, is there any guideline from SEBI की अगर 25 तारीख को पैसे डेबिट हो रहे हैं तो वो NAV किस दिन की मिलेगी? These are the two questions. जी. Right. नहीं, ये जो आपका दूसरा प्रश्न है प्रोसीजरल, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका पैसा जिस दिन डेबिट होता है और आपको NAV किस दिन का मिलता है. नहीं, सेबी का नियम है कि जब म्यूचुअल फंड कंपनी के पास पैसा पहुंच जाए उसके बाद अर्लीस्ट, अगर आपका पैसा कट ऑफ टाइम के पहले पहुंच जाता है, जो कि आज के दिन शायद 3 बजे है, और कोविड में ये के समय, पीक के समय, ये इसको कम करके 1 बजे कर दिया गया था ताकि ट्रांजैक्शन टाइम पैसा पहुंचने में या मूवमेंट में थोड़ी समय कम रहता था. तो कट ऑफ टाइम के पहले म्यूचुअल फंड का एक कट ऑफ टाइम रोज का होता है कि अलग अलग फंड के लिए निर्धारित है. आज के दिन मेरे ख्याल में 3 बजे के पहले अगर आपका पैसा पहुंच जाता है तो आपको उस दिन के शाम का NAV आपको मिलना चाहिए. अगर वो 3 बजे के बाद का आपका अगर डेबिट होता है तो आपको नेक्स्ट वर्किंग डे, अगर आप फ्राइडे को कर रहे हैं तो मंडे का आपको मिलेगा. अगर आप थर्सडे को कर रहे हैं और फ्राइडे को बाजार खुला हुआ है तो फ्राइडे के शाम का आपको NAV अलॉट होना चाहिए. और ये नियम बहुत ही स्ट्रिंजेंट है और इसको आपको फॉलोअप करना चाहिए. अगर ऐसा नहीं होता है तो कि आपके खाते से पैसा कब निकला, कितने बजे निकला, और आज के दिन जब आपके अकाउंट से डेबिट होता है तो इसका भी विवरण रहता है. आपका मैं पहला प्रश्न जो कि इंटरेस्टिंग था मैं भूल गया. पिछले साल जैसा मार्च 2020 में जिस तरह से बाजार धड़ाम से गिरा था वैसे बाजार गिरेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन बाजार तो ऐसा ही है, जाता है सीढ़ियों से और आता है लिफ्ट से, और धीरे धीरे बढ़ता है और गिरता है धड़ाम से, और वही हमने देखा है. लेकिन अभी कितना जाएगा ये किसी को नहीं पता है. लेकिन पिछले साल जिस तरह की अनिश्चितता थी, जिस तरह के बारे में अनिश्चितता कि भविष्य कैसा होने वाला है, पहली बार हम लोगों ने 100 साल के बाद, जो कि जिसका अंदाज भी नहीं था कि किस तरह से हमारा दुनिया बदलने वाला है, जिस तरह का कारोबार पे असर होने वाला है, उतनी अनिश्चितता नहीं है. तो मुझे उतनी उम्मीद नहीं है. लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि बाजार पिछले 1 साल में एवरेज आम निवेशकों के लिए 100% बढ़ा है. और वो जो गिरी हुई स्थिति थी, जो मार्च 2020 की स्थिति थी, उससे तो बहुत ही बढ़ा है 1.5 साल में. तो बाजार गिर सकता है, बाजार गिरता है. अगर आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं तो चिंता ना करें, इसको एक मौके के तौर पे देखें. और पिछले साल जैसा गिरेगा लॉजिकली नहीं गिरना चाहिए, लेकिन बाजार में शॉर्ट टर्म में कोई लॉजिक काम नहीं करता है. जयपुर से जितेंद्र हमारे साथ हैं. जितेंद्र, स्वागत है आपका, सवाल पूछें. हेलो जी. हाँ, सवाल पूछे जी, सवाल पूछिए जी. हाँ अच्छा, म्यूचुअल फंड में सर अल्फा और बीटा बताइएगा क्या होता है. और दूसरा कि सर जैसे हम लोग का डीमैट अकाउंट है तो क्वार्टरली कोई रिपोर्ट आती है कि इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो लार्ज मिड कैप स्मॉल कैप रहता है, तो उसके नीचे लिखा रहता S&P 500 TRI, निफ्टी 50 TRI, S&P 200 TRI. तो इसका क्या मतलब होता है सर? जी, एक तो कि जब भी आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हर एक म्यूचुअल फंड के लिए अनिवार्य है कि वो बताए कि वो उसका एक कोई स्टेटेड बेंचमार्क होना चाहिए, वो किस बेंचमार्क के तहत या उसके अंदाज पे वो चलाएगा. और ये सभी का नियम है. जब आप कोई फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक स्टेटेड एक स्टेटेड बेंचमार्क होना चाहिए. ये जो अलग अलग बेंचमार्क की आप जो बता रहे हैं, ये अलग अलग इंडेक्स है, ये अलग अलग बेंचमार्क है. ये टोटल रिटर्न इंडेक्स है, क्योंकि जैसे आप सेंसेक्स जो आप टीवी पे देखते हैं कि आज इतना प्रतिशत बढ़ा, इतना प्रतिशत गिरा, या इतना पॉइंट बढ़ा या गिरा निफ्टी का या सेंसेक्स का, उसका एक दूसरा भी वेरिएशन होता है जो आम लोगों को नहीं दिखता है, लेकिन वो फंड कंपनियां या हमें वो अवेलेबल होता है, या फंड कंपनियां उसके बारे में बताती हैं. वो टोटल रिटर्न इंडेक्स है.
इस वाले इंडेक्स और उस इंडेक्स में अंतर क्या है कि सेंसेक्स का जो टोटल रिटर्न इंडेक्स है उसमें जो कंपनियां जो डिविडेंड देती हैं उनको उनका रीइन्वेस्टमेंट उनको भी उसके मूवमेंट में फैक्टर करके रिटर्न जोड़ा जाता है और उस वजह से सेंसेक्स का टोटल रिटर्न इंडेक्स करीब करीब 2-2.5% सालाना बढ़ जाता है क्योंकि जो कंपनियों के डिविडेंड आते हैं उस वजह से ये रिटर्न बढ़ जाता है। तो यही है। Right. Well, listeners, you are tuned in to the phone-in edition of Market Mantra on AIR FM Gold. And as always, on Sundays, we are focusing on mutual fund and related issues. Just to remind our phone numbers, 2331-4444, 2371-7106 and 2371-7117. आइए आगे खबरों पर नजर डालते हैं। दो कंपनियां स्टार हेल्थ और टेगा इंडस्ट्रीज अगले सप्ताह आईपीओज लाने वाली हैं जिनसे 7,868 करोड़ रुपए जुटाने का अनुमान है। स्टार हेल्थ का आईपीओ 30 नवंबर को शुरू होगा जबकि टेगा इंडस्ट्रीज का 1 दिसंबर को खुलेगा। इससे पहले नवंबर में अब तक 10 कंपनियां सफलतापूर्वक अपने आईपीओज ला चुकी हैं। 2021 में अब तक 51 कंपनियां अपने आईपीओ से 1 लाख करोड़ रुपए जुटा चुकी हैं। Let's take our next caller. We are joined by R.S. Dahiya from Delhi. Good evening and please put your question. Sir, good evening to Market Mantra team. Good evening. Ji. My question to Dhirendra ji is that since the market has fallen significantly, is it the right time to invest for an ordinary investor for a period of 5 to 7 years? It is always, whether it has fallen or always a good time to be investing in the market with a 5 to 7 years view. And what you think has fallen dramatically or significantly, I would say that, it's not very significant. The market fell down by 30% in March 2020 in the last week itself. That was significant. What has happened right now is 6% decline in last 1 month on the Sensex. And if you look at it in terms of, the way the market has gone up in the last 1.5 years, ever since that big decline in March 2020, market has substantially recovered. In fact, market has, defied the logic of, all the kind of apprehension, all the kind of pessimism that companies came to a standstill for many, many months. Many companies were are still trying to get back on their feet while we are, listening to or hearing of a new strain of the same crisis. And it can repeat itself. The life is not back to normalcy in the old way. And during the process, in the last 1.5 years, what has happened is that the life will never be the same again. A lot of things will change forever in a reasonable way or in a permanent way or in a modest way, which will. So I think 6% decline isn't a big decline, and one should be And in the short run, it is impossible to guess. In the long run, I am very confident that the markets will do very well simply because, despite all the crisis that we have seen, the big thing that has happened in the Indian economy or in the Indian market or in the business way, the big thing that has happened, they will continue to yield result over a long period of time. Look at what has happened, GST. It'll happen, it'll keep having an impact in terms of formalization of the economy, simplification of businesses. When I look at lowering of interest rate, we have almost forgotten that, just before the pandemic, the corporate tax rate actually came down and it has come down to almost an all-time low. It is even lower for the newer capacities being set up. So when I look at many things that is happening for our businesses, for our economy, the manufacturing imputers, interest rates at all-time low. So when I look at all the big things, and it will have a steady impact. Also the turnaround of the banking sector. All these 5-7 years, till about a year back, our banking sector, which is actually the supplier of capital in a large economy like ours, was in great difficulty. They did not have the firepower to actually finance businesses and be on their feet. Now they have been able to clean up their act and back in business. So I think a lot has undergone a change. One should be far more optimistic, not just pandemic, but generally speaking.
So markets, I don't know what will happen in the short run. It might come down even, sharply in the short run. It is happening primarily because of, sucking of liquidity by the IPOs, and also, the big crisis that was looming was inflation, and the likely tapering of interest rates world over. Despite that, I think one should be optimistic in the long run. Right. Can't say anything in the short run, and that's the view everybody should take. जी, अगले कॉलर हैं भिलाई से रवि। रवि, स्वागत है आपका, सवाल पूछें। नमस्कार। Actually, I want to first of all congratulate the entire team for the wonderful program being presented. Thank you so much. 3-4 दिन पहले जो है एक वो बैरल के बारे में किसी ने क्वेश्चन पूछा था, तो बकायदा उसी प्रोग्राम के दौरान जो है आप लोगों ने खोज के 159 लीटर्स का एक बैरल होता है, वो भी आपने बताया। रियली वंडरफुल, हैट्स ऑफ टू यू ऑल। तो इसी सिलसिले में मैं अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि can you suggest a simple formula for a layman SIP mutual investor as to when should he or she book profit in a rising market? Okay. There isn't a formula. In fact, the only thing which should drive, which should govern your profit booking is a little, few months or a year or two, depending on the time frame. If you are investing for 20 years, then maybe, for your retirement, maybe a year or year and a half before your retirement. If you are investing for the last 3, 4 years, 5 years for a particular goal, maybe a part of the money 1 year before you need it. If for your child's education, if he's going to college, if she is going to college, maybe the first year fee, you should have it handy and in a fixed income fund, in a short-term fund or a liquid fund or your bank account. 1 year before you need the money. Don't depend on the market till the last day, and don't get greedy because if your need has been met, just take your money out. So it is not a formula, and if you try and do the formula, you will go wrong because market has its own ways of market is very erratic. I remember the phase in which the market went up from 3,000 to 20,000. If you would have pulled your money out on any percentage gain or depending on the level of the market in terms of relative expensive, how expensive the market was and all that kind of formulas, price to book value, everything failed. You would have taken your money out and you would have missed the best, rally of the market in a lifetime. जी, अगली खबर पर नजर डालें हम। विदेशी निवेशकों ने नवंबर में अब तक भारत के पूंजी बाजार में 5,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया है। ताजा आंकड़ों के अनुसार विदेशी निवेशकों ने देश के शेयर बाजार में 1,400 करोड़ रुपए और ऋण बाजार में 3,919 करोड़ रुपए का निवेश किया। इस तरह नवंबर में भारतीय पूंजी बाजार में अब तक कुल विदेशी निवेश 5,319 करोड़ रुपए का रहा। अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय पूंजी बाजार से लगभग 12,700 करोड़ रुपए निकाले थे। उससे पहले उन्होंने सितंबर में 26,517 करोड़ रुपए और अगस्त में 16,459 करोड़ रुपए का निवेश किया था। Let's take a look at the oil scenario. Registering steepest fall since April 2020, global crude oil prices fell for the 5th straight week as a new variant of the coronavirus spooked investors and added to concerns that a supply surplus could swell in the first quarter. Brent crude oil futures plunged over 8% during the week to settle at $72.72 per barrel on Friday. U.S. crude declined 10.4% for the week, ending at $68.15 per barrel. Oil fell with global equities market on fears the variant could dampen economic growth and fuel demand. The WHO has designated the new variant as Omicron. The US, Canada, Britain, Guatemala and European countries are among those to restrict travel from southern Africa where the variant was detected. OPEC Plus is also monitoring developments around the variant, with some expressing concern that it may worsen the oil market outlook less than a week before meeting to set policy. आज वक्त इतना ही है। धीरेन्द्र कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं को बहुमूल्य जानकारी देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका। And before we close, a quick look at the top stories. India is leading the world of startups with record investments year after year, says Prime Minister Narendra Modi. 2 companies to float IPOs next week.
and foreign investors pump in over 5,300 crore rupees into the Indian capital market so far in November. And with that, we come to the end of this edition of Market Mantra. Thank you so much for joining us. Goodbye.